Jai Hind students. Today I am proceeding with the remaining portion. We rode and my cousin Morad sang. हम राइड कर रहे थे घोड़े पर और मेरा कज़न जो है वो गाना गा रहा था. For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors, we belong. We let the horse run long as it felt like running. हमने हॉर्स को छोड़ दिया था कि वो जितना राइड करना चाहता है, वो जितना दौड़ना चाहता है वो दौड़े. At last my cousin Morad said, "Get down, I want to ride alone." और मेरे जो कज़न है बोला कि तुम यहाँ इस हॉर्स से उतर जाओ, मैं अकेले ही राइड करना चाहता हूँ. Will you let me ride alone? I asked. अलाम ने पूछा कि क्या मुझे भी तुम अकेले राइड करना दोगे? That is up to the horse, my cousin said. Get down. उसने कहा कि वो हॉर्स के ऊपर है कि वो राइड करने देगा या नहीं, अभी नीचे उतरो. The horse will let me ride, I said. उसने कहा कि हॉर्स मुझे राइड करने देगा. We shall see, he said. Don't forget that I have a way with the horse. और हम देखेंगे, बट ये मत भूलो कि मैं हॉर्स के साथ बहुत टाइम से हूँ. Well, I said, any way you have with the horse, I have also. उसने कहा जब तक तुम थे तब तक मैं भी हॉर्स के साथ था. For the sake of your safety, he said, let us hope so. Get down. और मैं तुम्हारी सेफ्टी के से बोल रहा हूँ कि होप सो कि अभी तो उतर जाओ. All right, I said, but remember you have got to let me try to ride alone. और वो उतरते हुआ बोले कि ध्यान रखना कि तुमने कहा है कि मैं अकेले राइड कर सकता हूँ. I got down and my cousin Morad kicked his leg into the horse and shouted, "When's your run?" Now मैं उतर गया और मेरा जो कज़न है उसने हिल से हॉर्स को किक किया और चिल्लाया कि "When's your run?" The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a flurry of speed that was the loveliest. Now हॉर्स जैसे ही मोराट ने उसे किक किया तो हॉर्स जैसे दो पैरों पर खड़ा होकर एकदम हिनहिना रहा था, एकदम चिल्ला रहा था और उसने स्पीड पकड़ी. और दैट सीन वॉज द वेरी लवलीस्ट सीन. That was the loveliest thing I had ever seen. My cousin Morad raced the horse across the field of the dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dipping yet. मेरा कज़न राइड कर गया था. वो ड्राई ग्रास में गया जहाँ का इरिगेशन डिच की तरफ गया और 5 मिनट्स में वापस आ गया और पूरा गीला था. The sun was coming up. Now it's my turn to ride, I said. मतलब दिन होने वाला है. आराम ने कहा कि अब मेरा टर्न है कि मैं राइड करूँगा. My cousin Morad got off the horse. और मेरा कज़न हॉर्स से नीचे उतर गया. Ride, he said. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. Now जो अलाम है वो हॉर्स पर बैठ गए और सोच रहे थे कि हॉर्स चलेगा, बट हॉर्स नहीं चला. Kicking into his muscles, my cousin Morad said, "What are you waiting for?" मोराट ने कहा कि उनकी जो हॉर्स की जो मसल है उस पर किक करो, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो. We have got to take him back before everybody in the world is up and about. और हमें उसे लेकर जाना है, सब लोग उठ जाएं उसके पहले हमें उसे लेकर जाना है. I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. और जैसे ही मैंने हॉर्स की मसल्स पर मारा तो वो एकदम से पिछली टांग के उससे खड़ा हुआ, आवाज़ कर वो दौड़ा. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halibillion, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running.
नाउ आराम को हॉर्स चलाना नहीं आता था, वो अपने आप ही चल रहा था और वो इरिगेशन डिच की साइड नहीं जाकर वो वाइन यार्ड में चला गया और वहाँ पर उसने एकदम से छलांग लगा ली, 7 वाइन यार्ड्स के ऊपर छलांग लगा दी और आराम वहाँ पर गिर गए। My cousin Morad came running down the road. I'm not worried about you, he shouted. You have got to get that horse. You go this way and I will go this way. If you come upon him, be kindly, I will be near. ना वो हॉर्स एकदम से दौड़कर गायब हो गया, बहुत तेज़ी में दौड़कर। अब कज़न दौड़ कर आया, मोराट जो कज़न है वो दौड़ कर आया और उसने कहा कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे हॉर्स की चिंता है। उसको ढूंढो और यदि मिलता है तो उससे काफ़ी कामली ट्रीट करना। I continued down the road and my cousin Morad went across the field towards the irrigation ditch. नाउ हम रोड पर ढूंढ रहे थे और मेरा कज़न है जो कि इरिगेशन डिच की तरफ गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, और आधे घंटे में हमने हॉर्स को ढूंढ लिया। ऑल राइट, ही सेड, जम्प्ड ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेकन नाउ, व्हाट विल वी डू? आई सेड, वेल, ही सेड, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। नाउ अब ये बताओ कि सुबह होने वाली है, अब हम इस हॉर्स को कहाँ लेकर जाएं? देन दे हैव डिसाइडेड कि हम उस हॉर्स को छुपा देंगे अगली सुबह तक। He didn't sound worried and I knew he'd hide him and not take him back, not for a while at any rate. उसे विश्वास था कि मोराड उसे छुपा देगा और वो बाहर नहीं निकालेगा दूसरे सुबह तक। Where will we hide him? I said. I know a place, he said. How long ago did you steal this horse? I said. Now again Alam have asked about the horse, कि मोराड से पूछा कि तुमने कब इसे चुराया था। It suddenly dawned on me that he had been taken these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew only how much I longed to ride. और उसने कहा कि मैंने अभी सुबह ही उसे लेकर आया हूँ और अब तुम्हें पता है कि मैं कितना चाहता हूँ कि मैं हॉर्स राइडिंग सीख लूँ। Who said anything about stealing a horse? He said. और कौन कहता है कि मैंने हॉर्स को चुराया है? Anyhow, I said, how long did you begin riding every morning? और ये कब से तुमने चालू किया है कि सुबह ये हॉर्स राइड करना? Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we start riding this morning. और उसने कहा कि क्या तुम सच बोल रहे हो कि तुम आज इसी मॉर्निंग से राइड कर रहे हो? देन ही हैव टोल्ड कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को कोई बोले कि हम गलत हैं, हम झूठे हैं, और तुम भी जानते हो कि मैंने आज सुबह मॉर्निंग से ही राइड स्टार्ट की है। ऑल राइट, आई सेड। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू बैन ऑफ द डेजर्ट वाइनयार्ड, which at one time had been the pride of a farmer named Favigian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. फार्मर के वाइनयार्ड में छुपाना चाहते थे जो कि बहुत ही फेमस है। And there were some oats and dry alfalfa in the barn. और वहाँ पर oats हैं और dry alfalfa हैं उनके जो बैरन में है उसमें। We began walking home. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. Now they were thinking कि horse इतने अच्छे से कैसे behave कर रहा है, ये मानना बहुत मुश्किल है। At first I wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with the horse. I can get it to want to do anything I want it to do so. Horses understand me. नाउ मोराट ने कहा कि पहले वो वाइल्डली ट्रीट कर रहा था, बट तुम्हें पता है कि मुझे हॉर्स को संभालना बहुत अच्छे से आता है, मैं हॉर्सेस को बहुत अच्छे से समझता हूँ, इसलिए वो फ्रेंडली हो गया है। हाउ डू यू डू इट? आई सेड।
I have an understanding with the horse, he said. अब जब हॉर्स, उसने कहा कि मेरी बात मैं हॉर्स को समझने लग गया हूँ, तब आराम ने पूछा कि तुमने ये कैसे किया है. Then he have told कि मैं हॉर्स को समझता हूँ, उनकी एक्टिविटीज़ को समझता हूँ. Yes, but what sort of an understanding, I said. A simple and honest one, he said. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with the horse. और आराम ने एज क्वायरी कि उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि ये हॉर्स को कैसे संभाला जाता है. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. Now, उसने कहा कि तुम अभी बहुत छोटे हो, जब 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि हॉर्स को कैसे संभाला जाता है या उसको कैसे समझा जाता है. I went home and ate a hearty breakfast. हम घर गए और वहाँ पे पेट भरकर खाना खाया. That afternoon my uncle Castro came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country. Now उस आफ्टरनून, उस दोपहर जो अंकल कैस्ट्रो है हमारे घर आए थे और वो कॉफ़ी और सिगरेट पी रहे थे और पुरानी बातें याद कर रहे थे. Then another visitor arrived. और दूसरा एक और मेहमान आए. A farmer named John Byro. और जो फार्मर हैं उनका नाम है जॉन बायरो. An Assyrian who out of the loneliness had learned to speak Armenian. और वो काफ़ी अकेले रहते थे और उस वजह से ये आर्मेनियन से काफ़ी बात करते हैं. My mother brought a lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked. Now जब मेरी मम्मा उनके लिए कॉफ़ी लाई, टबैको लाई और उन्होंने सिगरेट को स्मोक किया और कॉफ़ी का एक सिप लिया. Then at last, signing sadly, he said, My white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. Now उन्होंने कहा कि मेरा हॉर्स, जो वाइट हॉर्स है, वो चोरी हो गया है पिछले महीने और वो अभी तक नहीं मिला. I cannot understand it. आर्यन को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं. My uncle Kashrov began like irritated and shouted, It's no harm. एज द अंकल कैस्ट्रो की जो हैबिट थी वो हर समय हर इंसान को बीच में ही टोक देते थे और गुस्से में बोल देते थे, कोई बात नहीं, उसकी कोई कुछ नहीं बिगड़ा है. इट इज़ नो हार्म. वॉट इज़ द लॉस ऑफ द हॉर्स. और हॉर्स चला गया तो उसमें लॉस क्या है. हैवेंट वी ऑल लॉस द होमलैंड. क्या हम सब ने अपना होमलैंड लॉस नहीं किया है. What is this crying over the horse? और हॉर्स के लिए क्या रोना. That may be all right for you, the city dweller, to say, John Byro said. But what is my surrey? What good is a surrey without the horse? Now here जॉन ने कहा कि ये आपके लिए लग रहा है कि कुछ बिगड़ा नहीं है और वो हॉर्स एक जगह से दूसरी जगह हॉर्स पर वो सामान लेकर जाते थे. पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल कैस्ट्रो रोव्ड. और अंकल कैस्ट्रो ने चिल्लाकर बोला कि उस चीज़ पर ध्यान मत दो. आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड. यू हैव legs, my uncle Castro shouted. जॉन बायरो ने कहा कि मुझे 10 miles चलकर आना पड़ा. Then Uncle Castro चिल्लाकर बोले कि तुम्हारे पास पैर हैं. My left leg pains me, the farmer said. फार्मर ने कहा मेरा उल्टा पैर काफ़ी दर्द होता है. Pay no attention to it, my uncle Castro roared. और अंकल कैस्ट्रो ने फिर से गुस्से में बोला कि उस पर क्यों ध्यान देना है. That horse cost me $60, the farmer said. फार्मर ने कहा कि वो हॉर्स मैंने $60 में खरीदा था. I split on money, my uncle Castro said. He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. अंकल कैस्ट्रो ने कहा मैं पैसों पर थूकता हूँ और वो वहाँ से खड़े हो गए और हाउस के बाहर जब डोर से निकले, गुस्सा करके निकल रहे थे तो उन्हें जोर से गेट को बंद किया. My mother explained. He was a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. Now मम्मा ने जॉन को बोला कि वो बहुत सिंपल हार्ट है बट वो सिर्फ होमसिक है और सच अ लार्ज मैन है.
The farmer went away and I ran over to my cousin Morad's house. और फार्मर चले गए और मैं मोराड हाउस की तरफ दौड़ा. नाउ इन पैराग्राफ में दिया गया है कि मोराड एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ है और एक बर्ड को लग गई है और उसको वो रिपेयर कर रहा है और वो बर्ड से बात कर रहा है. नाउ आई एम रीडिंग द पैराग्राफ. ही वॉज सिटिंग अंडर द अ पीच ट्री trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. That is, वो पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ है और वो विंग रिपेयर कर रहा है जो कि रॉबिन बर्ड है, क्योंकि वो फ्लाई नहीं कर पा रही है और वो बर्ड से बात कर रहा है. What is it? He said. The farmer John Byro, I said, he visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. Now वो दौड़कर मोराड के पास आया और जो बात जॉन बायरो और उनकी मम्मा से सुनी थी, उन्होंने कहा कि जॉन बायरो घर आए थे, उनके हॉर्स के बारे में पूछ रहे थे जो कि 1 मंथ हो चुका है तुम्हारे पास है और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं राइड नहीं सीख लेता हूँ जब तक तुम उस हॉर्स को वापस नहीं करोगे. इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मोराड सेड. तुम्हें 1 साल लग जाएगा ये राइड सीखने के लिए, कज़न मोराड ने बोला. वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड. उसने कहा कि क्या हम 1 साल तक हॉर्स रख सकते हैं. माई कज़न मोराड लीप टू हिज फीट. वॉट? ही रोड. Are you inviting a member of a Gregorian family to steal? The horse must go back to its true owner. और जैसे ही उसने कहा कि हम 1 साल तक हॉर्स को रख देते हैं, वो एकदम से चिल्लाकर बोला, क्या तुम ये चाहते हो कि जो ग्रेगोरियन फैमिली पर एक धब्बा लग जाए चोरी का? अब हॉर्स को उसके ट्रू ओनर के पास जाना है. When I said, in 6 months at least, he said. और हमने कहा कि कब? तो उसने कहा कम से कम 6 महीने में हम उसको छोड़ देंगे. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. और उसके हाथ में जो बर्ड थी रॉबिन, उसने उसको हवा में फेंका और बर्ड ने बहुत कोशिश की कि फ्लाई करे, वो 1-2 बार गिरी, बट उसके बाद वो उड़ गई. अर्ली एवरी मॉर्निंग for 2 weeks, my cousin Morad and I took the horse out of the barren of the desert vineyard where we are hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over the grapevine and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hope in time to learn to ride the way my cousin Morad rode. नाउ हर समय अब 2 वीक तक वो रोज़ अपने वाइन यार्ड जहाँ पर वो हॉर्स को छुपाते थे वहाँ से ले जाते थे और रोज़ राइड करते थे. और आराम जितनी बार राइड किया वो ग्रेप्स वाइन पर वो हॉर्स उनको गिरा देता था और वहाँ से दौड़ जाता था. उनकी इच्छा थी कि वो मोराड की तरह राइड करे. One morning on the way to the Fataginian desert vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. एक दिन जब वो यार्ड से हॉर्स को निकाल कर आए तब उन्होंने देखा कि जो फार्मर है जॉन बैरो वो रास्ते में है. Let me do the talking, my cousin Morad said. I have a way with the farmer. मोराड ने कहा मैं उनसे बात करता हूँ. Good morning, John Byro, my cousin Morad said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. अब मोराड ने जॉन बैरो को विश किया गुड मॉर्निंग और फार्मर की नज़र जब हॉर्स पर पड़ी तो वो बड़े ध्यान से हॉर्स को देख रहे थे. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉर्स? उन्होंने कहा कि गुड मॉर्निंग. उन्होंने मोराड को विश किया गुड मॉर्निंग और पूछा हॉर्स का नाम क्या है. माई हार्ट, माई कज़न मोराड सेड इन आर्मेनियन. अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth?
नाउ जब नाम पूछा गया मोराट से तो उसने कहा आर्मेनियन, और जॉन बैरो ने कहा कि ये बहुत ही लवली हॉर्स है, और शायद ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मेरा हॉर्स है जो कि मैनी वीक्स अगो स्टोल हो गया था, चोरी हो गया था। क्या मैं उसके माउथ के अंदर, मुंह के अंदर देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मोराट सेड। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। फार्मर ने हॉर्स के मुंह के अंदर देखा और उसके टीथ देखे। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। द फेम ऑफ योर पेरेंट्स फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। नाउ ही हैव टोल्ड, जब उन्होंने टूथ देखे, उसके दांत देखे हॉर्स के, तो उन्होंने कहा यदि तुम इस ट्राइब के नहीं होते तो मैं ये कहता कि ये मेरा ही हॉर्स है, हो सकता है ये ट्विन हो, ये जोड़ीदार हो। Suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. और जो सस्पिशियस मैन है, जो डाउटफुल नेचर है, वो आइज़ पर बिलीव कर सकता है, जबकि हार्ट ये बोल रहा है कि वो मेरा ही हॉर्स है। Good day, John Byro, my cousin Morat said. Early the following morning, we took the horse to the John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. Now early morning, जब जॉन बायरो के वहाँ पर वाइन यार्ड में वो हॉर्स को लेकर गए, और साथ में वहाँ पर सीन दिया गया कि डॉग्स जो हैं उनके साथ बिना आवाज़ निकाले चल रहे हैं। द डॉग आई विस्पर्ड टू माई कज़न मोराट, आई थॉट दे वुड बार्क। और उन्हें लगा था कि डॉग भौंकेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, आई हैव द वे विद डॉग्स। उसने कहा कि और कोई होता तो डॉग्स भौंकते, मैं डॉग्स के साथ भी बहुत चला हूँ। माई कज़न मोराट पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, pressed his nose into the horse nose and petted it, and then we went away. और मेरे कज़न मोराट ने उस हॉर्स को गले लगाया, खुद की नोज़ हॉर्स की नोज़ पर रखी और उसको पैट किया, उसको टैप किया, उसको हाथों से 2-3 बार टैप किया और फिर वहाँ से चले गए। That afternoon, John Byro came to our house in this surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. और उसी दिन दोपहर को जॉन बायरो हमारे घर आए हॉर्स के साथ, और मेरी मम्मा को हॉर्स बताया और बोला कि ये हॉर्स मेरा वापस आ गया है जो कि चोरी हो गया था। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर। नाउ जॉन बायरो ने कहा, अपनी उसकी मम्मा से कहा कि मैं इस हॉर्स के बारे में क्या बोलूँ, हॉर्स तो और भी स्ट्रोंगर हो गया है और भी हेल्दी हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, आई थैंक गॉड माई अंकल कैशरो who was in the parlor became irritated and shouted, quiet man, quiet, your horse has been returned, pay no attention to it. ना जब उसने कहा कि मेरा हॉर्स बहुत ही स्ट्रॉन्गर हो गया और जो भी लेकर गया था उसने बहुत अच्छे से उसे रखा है, तो अंकल कैशरोल जो कि पार्लर में बैठे थे वो फिर से एक ही चीज़ बोले, चुप हो जाओ, अब तुम्हारा हॉर्स मिल गया है, अब ध्यान मत दो। आई सपोज everyone must have understood this chapter very nicely. Tomorrow I will meet with this next chapter. जय हिंद बच्चों।